Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 8 and the name of our chapter is Structure of Earth. Today we are going to study about sources of water on earth. यानी कि ज़मीन पर जो पानी के मुख्तलिफ sources हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. So my dear students, before moving on towards the main lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. उसके लिए आपको सवालात को बहुत गौर से सुनना है और फिर उनको आंसर करना है. So what are the three layers of earth? The three layers of earth are, yes, crust, mantle and core. Very good. So on which layer we live? We live on the crust. Very good. So what is the hottest layer? That is the core. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards an activity. So activity के लिए आपको करना क्या है कि आपको मैं कुछ pictures भी दिखाऊंगी और आपने pictures को देखते जाना है और साथ साथ आपका आंसर करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा. Name some water resources of earth which you know about. So पानी के जो मुख्तलिफ sources हैं earth के ऊपर उनके बारे में बताएं, जैसे कि lakes, wells यानी कि कुएं, इसके अलावा oceans and seas. So these are different sources of water which are present on earth. Okay, my dear students, so in today's lecture students will be able to describe sources of water on earth. यानी कि आज बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो ज़मीन पर पानी के जो मुख्तलिफ sources हैं उनके बारे में उनको describe कर सकेंगे. So my dear students, now is the time for pre-reading questions. So quickly tell me that what are fresh water sources are इन पाकिस्तान, यानी कि पानी में फ्रेश वाटर सोर्सेज कौन कौन से हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं. दैट आर रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स एंड वाटरफॉल्स. दीज आर फ्रेश वाटर सोर्सेज, यानी कि ताज़ा पानी के सोर्सेज हैं जो कि ड्रिंकेबल होते हैं. Okay, my dear students, now is the time for reading, for which you need to open page number 106 from your Science 5 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब ने अपनी फिंगर वहां रखनी है जहां से मैं रीडिंग करवा रही हूँ. Sources of water on earth. Water on the earth is present in different sources. यानी कि जमीन पर जो पानी है वो मुख्तलिफ सोर्सेज की अशकाल में मौजूद है. These sources are distributed naturally in different forms and locations. और ये जो sources हैं ये ज़मीन पर naturally, यानी कि इनको naturally जो है अल्लाह ताला की तरफ से ही ये मुख्तलिफ locations पर और मुख्तलिफ हालतों में distribute हुए हैं. On the surface, below the ground, in the ocean, etc. और ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है? कुछ जो है वो surface पे मौजूद है ज़मीन की, कुछ जो है वो ज़मीन के अंदर मौजूद है, कुछ जो है वो oceans की फॉर्म में मौजूद है. Water is generally categorized as follows, that is ocean water sources and fresh water sources. So पानी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है generally, that is ocean water and fresh water. So let's discuss about ocean water resources. The largest reservoir of water are oceans. These are generally termed as salt water because of the high concentration of dissolved salts and minerals. This largest source is divided into 7 oceans throughout the earth and accounts for 97% of the total water sources on the earth. Pakistan shares ocean water boundaries on its south side with the Arabian Sea, which is the part of Indian Ocean. So my dear students, जो oceans हैं ये salt water होते हैं, यानी कि इनमें salt की concentration जो है ये बहुत ज़्यादा होती है और ये जो पूरी दुनिया का पानी है, यानी कि आपके अर्थ के ऊपर जो पानी मौजूद है ये उसका 97% है. अगर मैं आपको ग्लोब दिखाऊं, so here is the globe. So यहाँ आपको तमाम जो ब्लू पार्ट नजर आ रहा है that is water portion. So पूरी दुनिया में जो पानी मौजूद है oceans जो है वो उसका 97% है. Okay, so only 3% is the fresh water. और इसके अलावा जो पाकिस्तान में ओशन है वो साउथ साइड पे लगता है अरेबियन सी के साथ, यानी कि दैट इज इंडियन ओशन. So fresh water resources.
फ्रेश वाटर इज जनरली टर्म एज स्वीट वाटर, यानी कि मीठा पानी, पीने वाला पानी, बिकॉज इट हैज अ लो concentration of dissolved salts and minerals. It is the water essential for human use such as drinking, agriculture, manufacturing. Fresh water is present in very small amount, just 2.5% of the total water resources. Most of the fresh water is frozen in the form of glaciers and ice caps around the north and south poles. Thus, it is not available for use. The remaining unfrozen fresh water is mainly found as groundwater and running water above the ground. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो पीने वाला पानी है जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, इसको मीठा पानी या स्वीट वाटर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सॉल्ट जो है वो बहुत कम मिकदार में होता है. इसके अलावा ये पीने के लिए इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है और डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. मेनली जो ज़्यादा पानी है फ्रेश वाटर है वो फ्रोजन फॉर्म में है, यानी कि ऑन द पोल्स, साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल में, आइस कैप्स की फॉर्म में और ग्लेशियर्स की फॉर्म में ये फ्रोजन है. इसका मतलब है दैट कैन नॉट बी यूज्ड, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. सो जो रिमेनिंग वाटर है वो कुछ ग्राउंड पे है, कुछ जो है वो रिवर्स की फॉर्म में है, स्ट्रीम्स की फॉर्म में है, लेक्स की फॉर्म में है. सो रिमेनिंग जो है वो ये वाटर रह जाता है. लेकिन मोस्ट ऑफ जो वाटर है वो फ्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, और अनफ्रोजन वाटर जो है वो बहुत ही कम परसेंटेज में रह जाता है, जो कि मेनली ग्राउंड वाटर पे की फॉर्म में मौजूद है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं. सो दिस running fresh water is available in the form of rivers, lakes, swamps, etc. Freshwater sources in Pakistan mainly depend upon the Indus water system, and it distributes its tributaries, that is Jhelum, Chenab, Beas, Satluj and river. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में जो फ्रेश वाटर है उसको हम दरियाओं से हासिल करते हैं, और जो सबसे बड़ा यहाँ पर फ्रेश वाटर सिस्टम है दैट इज द इंडस वाटर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, और उसका जो है फर्दर डिवीजन जो होती हैं वो मुख्तलिफ दरियाओं में हो जाती हैं, दैट इज झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलुज एंड रावी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द ग्राउंड वाटर resources. The largest usable portion of fresh water is in the form of water present below the ground. It is called groundwater. Where does groundwater come from? So my dear students, जो पानी हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो readily available है, वो है ज़मीन के नीचे, that is groundwater. अब ये groundwater जो है ये कहाँ से आ जाता है? So this groundwater comes from the rain. यानी कि जो बारिश की वजह से पानी ज़मीन के अंदर सीपन हो जाता है, that becomes the groundwater. So as rainwater seeps into the ground, it reaches rocks, strata, where water cannot. अब strata क्या है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. Where water cannot seep through easily. It then gathers in that rocking body by filling the empty spaces and cracks above that layer. It is now called groundwater. The top of that water in the soil, sand and rocks is called the water table. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पानी जो है जब बारिशों की वजह से ज़मीन के नीचे सीपन होता है तो ये मुख्तलिफ क्रैक्स एंड होल्स में से होता हुआ ज़मीन के नीचे चला जाता है, यहाँ तक कि ये स्ट्राटा तक पहुँच जाता है. अब ये जो स्ट्राटा है, स्ट्राटा एक ऐसा पोर्शन है, एक ऐसी जगह है जिससे नीचे जो है पानी उससे ज़्यादा सीप नहीं कर सकता, तो पानी वहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इट बिकम्स द ग्राउंड वाटर. सो इसी तरह जो वहाँ पर पानी का लेवल है जो कि सॉयल, सैंड और रॉक्स में मौजूद है, इसको हम वाटर टेबल भी कहते हैं. सो वेल्स गिव अस ग्राउंड वाटर. जो कुएं हम खोदते हैं ये हमें ग्राउंड वाटर जो है रेडिली अवेलेबल हमें इधर से हो जाता है. सो इसके अलावा ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द क्लियर चार्ट बिलो. सो ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है? जो टोटल ग्लोब वाटर है दैट इज डिवाइडेड इनटू सलाइन वाटर एंड ओशंस. सो ये तमाम जो है ये पूरा जो है ये ग्लोबल वाटर है. इसमें से जो ग्रीन पोर्शन आपको नजर आ रहा है दैट इज ऑल ओशन, ठीक है, दैट इज 96.5%. इसके अलावा जो ब्लू कलर की आपको यहां छोटी सी लाइन नजर आ रही है दैट इज ओनली फ्रेश वाटर, दैट इज 2.5%. अब अगर इसी को हम, यानी कि ये जो पानी है इसको हम अगर देखें, फ्रेश वाटर को देखें, तो फ्रेश वाटर में मैक्सिमम यानी कि 68.7 जो है वो ग्लेशियर और आइस कैप है, और सिर्फ हमें इतना सा पोर्शन जो है 30% ग्राउंड वाटर है, और सरफेस वाटर जो है वो 1.2% है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ रिवर, स्वैम्प्स एंड मार्शेस.
सो अगर हम ग्लोबल वाटर देखें, पूरी दुनिया का पानी देखें, तो मैक्सिमम जो है वो उसमें ओशंस में डिवाइडेड है और सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर है। और अगर उस फ्रेश वाटर को हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसमें से मैक्सिमम जो है वो ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स हैं, विच कैन नॉट बी यूज्ड। Most of the groundwater resources of Pakistan exist in the Indus Plain, extending from Himalayan foothills to the Arabian Sea. Groundwater is brought to the surface by means of tube wells or karez. It is used for agricultural, drinking purpose and in industry. So my dear students, पाकिस्तान में जो ग्राउंड वाटर है वो इंडस प्लेन से लेकर हिमालय से लेकर अरेबियन सी तक जो है वो मौजूद है। ग्राउंड वाटर को किस तरीके से सतह पर लाया जाता है, वेल्स की खुदाई करके और करेज की मदद से जो है वो पानी को सरफेस तक लाया जाता है, जिसको पीने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ दरिया हैं, सो अरेबियन सी जो है पाकिस्तान का समंदर है जो पाकिस्तान में साउथ की साइड पर है, और ये कौन से ओशन को टच करता है, दैट इज इंडियन ओशन। सो जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो हैं रिवर्स हैं, रिवर जेहलम है, चिनाब रिवर है, ब्यास है, सतलुज है, रावी है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर जो है वेल्स की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, और ग्रीन एंड ब्लू वाटर। सो दिस इज एन इंफॉर्मेशन, वाटर दैट फॉल्स एज रेन एंड इज स्टोर्ड इन द सॉइल इज नोन एज ग्रीन वाटर, वेयर एज वाटर दैट इज सोर्स्ड फ्रॉम रिवर एंड लेक्स इज नेम्ड एज ब्लू वाटर। Approximately 80% of the water used in agriculture is green water. So my dear students, पानी जो है वो दो तरह का है। एक को हम जो ज़मीन से हम निकालते हैं, जो कि बारिश की वजह से स्टोर हो जाता है ज़मीन के नीचे, उसको हम ग्रीन वाटर कहते हैं। वेयर एज जो पानी हम दरियाओं से और लेक से हासिल करते हैं, दैट इज ब्लू वाटर। सो मेनली जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं दैट इज द ग्रीन वाटर, जो कि ज़मीन के नीचे से हम ग्राउंड वाटर निकालते हैं। एंड नेक्स्ट इज एक्वीफायर इज द नेम given to the underground soil or rocks through which groundwater can easily move. So एक्वीफायर जो है वो जब पानी बारिशों का सीप इन करता है तो वो एक्वीफायर से होकर नीचे जाता है, जिससे ये आराम से सीप इन कर जाता है, नीचे गुजर जाता है। Most water lies within हाफ माइल, दैट इज 0.8 किलोमीटर ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यानी कि जब आप जमीन की खुदाई करें तो ज्यादातर जो ग्राउंड वाटर है वो आधे की हाफ माइल या जिसको 0.8 किलोमीटर कहते हैं, इतनी खुदाई के बाद आपको मिल जाता है। अब स्ट्राटा क्या है? स्ट्राटा आर द लेयर्स ऑफ अर्थ्स रॉक इन द ग्राउंड। सो स्ट्राटा एक ऐसी लेयर है जो कि जमीन की तह में आती है, जहां से नीचे जो है ग्राउंड वाटर नहीं जा सकता। Okay, my dear students, now is the time for evaluation. So quickly tell me, what are water resources on earth? That is ocean and fresh water. So what is ocean water? Ocean water is the salty water which is not यूजेबल, यानी कि ड्रिंकेबल नहीं होता वाटर, क्योंकि इसमें सॉल्ट कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। देन विच ओशन बाउंड्रीज आर इन पाकिस्तान? दैट इज ऑफ इंडियन ओशन, दैट इज टुवर्ड्स द साउथ, दैट टचेस द अरेबियन सी। And what is fresh water? Fresh water is also known as sweet water, which has very low concentration of salt, और इसको पीने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और डेली यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Then what are fresh water sources in Pakistan? So पाकिस्तान में fresh water sources जो हैं वो दरिया हैं, इसके अलावा ग्राउंड वाटर है, वेल्स हैं, जिनकी मदद से जो है वो पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। And what is groundwater? Groundwater is the rainwater that seeps under the ground and then collects there above the layer of strata, और उसके बाद जो है इसको खुदाई करके, that is 0.8 किलोमीटर जो है वो जमीन की तह में होता है और उसको वहां से निकाला जाता है। Okay, my dear students, now is the time for practice, for which you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from BioTeacher. So my dear students, you have to write down your name and your roll number, then you will answer the questions. आपने questions को बहुत carefully read out करना है। So let's start it. What categories of water sources are on earth? So these are fresh water and ocean water. What is the system of fresh water in Pakistan? That is Indus water system. The graphics represent the distribution of salt and fresh water on the planet. Complete the graphics with missing information. So my dear students, कितना percentage of water है? So if we talk about, this is ocean water and it is 96%, and this is fresh water
and it is 2.5%. So this is how you will complete the worksheet. If you will find any difficulty, you can also take help from the book. Quickly pause the video and finish the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the next part of the worksheet, and you have to answer the question, what is groundwater? What is its usage? So groundwater क्या है और इसका क्या usage है? Groundwater is the water that seeps into the ground when the rain falls, and इसका usage क्या है? It is used for drinking, it is used for agriculture and in the industrial purpose. Okay, my dear students, for homework, you will do MCQ number 3 and 6 given on page number 133, and you will also do question number 4 and 5 from section B given on page number 114. And what you will also do is you will do question number 4 from section C given on page number 114. आपने ये तमाम questions जो हैं ये notebook में करने हैं, MCQs आप अपनी book में solve करेंगे. So this is your homework. Now is the time for wrap up. So आज हमने क्या पढ़ा है? So around 71% of the surface of the earth is water, यानी कि 71% जो earth की surface है that is made up of water. There are 7 oceans on the earth. Rivers and streams are the sources of moving fresh water. Glaciers and ice cap are the sources of frozen fresh water. So आज हमने fresh water, ocean water और इसके अलावा जो water sources हैं earth पे उसके बारे में पढ़ा. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.